ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ। ਪਰ ਪੀਟੀਈ ਇੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਿੰਪੀ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਓਓ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਨਾਲੀ ਖੰਨਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਈ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है कि बाहर जाना है भाई, इंग्लिश टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो पीटीई जरूरी क्यों है क्या? करेक्ट सर। किसी भी कंट्री में विजिट करने के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू विजिट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जी, और हम जहाँ रह रहे हैं वो एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, बट जो सबसे फेमस है दीज डेज और पॉपुलर है, दैट इज पीटीई। तो पीटीई इज अ टेस्ट जो एक सिर्फ 2 आवर्स का टेस्ट है, और एक ऐसा टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कैंडिडेट्स को स्कोर लेना बहुत इजी है। आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं जी, सो पीटी के साथ यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। जी। शोनाली जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਅਰਸਨ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਇਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਇਨੇ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, अगर ये है तो क्यों है, और ये ज़रूरी क्यों है टेस्ट? सो पीटी पॉपुलर इसलिए है, इसके 3 रीजंस हैं। तो पहले तो ये है कि इट इज़ फास्टर। उसका मतलब ये कि आपके रिजल्ट्स 2 बिजनेस डेज में आपको मिल जाएंगे। दूसरा है इट इज़ फेयरर। नाउ सिंपी हैड मेंशन कि कंप्यूटर बेस्ड है। इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड along with responsible AI, which is again supported by expert humans who are good in the linguistic field. जी. So this combination makes the results unbiased, the scoring unbiased. And the third reason is that it is simpler. सिंपलर क्यों? स्टूडेंट्स को बस एक ही बारी टेस्ट सेंटर में जाना है, बस 2 घंटे के लिए बैठना है, और आपके 2 दिन में रिजल्ट्स, 2 बिजनेस डेज में आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू डू पीटीई। जी। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਟਰਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਟੀਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਟੀਈ ਕੋਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੀਟੀਈ ਅਕੈਡਮੀ। ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ करनी ਪੈਂਦੀ है? सो हमने पीटी को भी फरवरी दिस ईयर लॉन्च किया है, एंड दोनों टेस्ट के अलग अलग यूजेस हैं। पीटी जो एकेडमिक है वो स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्टडी अब्रॉड करने चाहते हैं, और पीटीई कोर जो है इट इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू लिव और वर्क इन कनाडा। जी। सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, पीटी एकेडमिक आपका एकेडमिक इंग्लिश चेक करता है, और पीटीई कोर आपका जनरल इंग्लिश असेस करता है जी। इसके अलावा 2-3 और डिफरेंसेस हैं क्वेश्चन टाइप्स में। देयर आर 2 क्वेश्चन टाइप्स दैट आर डिफरेंट इन बोथ एकेडमिक एंड इन कोर। वो दैट इज़ द मेन डिफरेंस, बट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स आर वेरी सिमिलर इन बोथ पीटीई एकेडमिक एंड इन पीटीई कोर। जी। ਸਿੰਪੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੀਟੀ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਅਰਸਨ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਊਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ? करेक्ट है सर। एक बहुत बड़ा एंजाइटी, नर्वसनेस कैंडिडेट्स को रहता ही है जी। किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेकर। पीटीई में मैम ने कहा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यस, जब हमारे यहाँ पे भी कोई कैंडिडेट कोचिंग लेने आता है, हम उसको वहाँ पे कंप्यूटर लैब के अंदर 2 आवर्स का एक रेगुलर क्लास देते हैं, जिसमें हम उसको टिप्स और स्ट्रैटेजीज देते हैं हाउ टू गेट बेस्ट स्कोर इन ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स: रीडिंग,
राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें हम उसको स्ट्रैटेजीज देते हैं। अब स्ट्रैटेजीज में क्या बताया जाता है, हमारा मेन फोकस रहता है स्कोरिंग पे। अब स्कोरिंग में फॉर एग्जाम्पल मेन एलिमेंट स्पीकिंग के लिए लेते हैं हम, जैसे फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन है। फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करें कैंडिडेट की, उसके लिए हमारे पास अपना एक AI प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कैंडिडेट्स को अनलिमिटेड प्रैक्टिस पोर्टल देते हैं। एक मोबाइल ऐप है वेस्टर्न ओवरसीज की, जिसपे कैंडिडेट 24 आवर्स प्रैक्टिस कर सकता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश लैंग्वेज की, करेक्ट, उतना ज्यादा आपका स्कोर अच्छा आएगा, बिकॉज आप लैंग्वेज के साथ कनेक्ट हो रहे हो। तो आप प्रैक्टिस कब करोगे, हमारे घर पे इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर वैसा नहीं क्रिएट हो पाता। इसीलिए वी सजेस्ट कैंडिडेट्स कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का असेस लें, 24 आवर्स उस पर प्रैक्टिस करें। क्लासरूम में टीचर्स मंडे टू फ्राइडे आपको जब क्लासेस दे रहे हैं, एवरी सैटरडे वी टेक अ मॉक टेस्ट, जिससे एनालिसिस होता रहता है कि आप किस मॉड्यूल में अच्छा जा रहे हैं, किस मॉड्यूल में आप वीक हैं, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस पे उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। हमारे यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं वेस्टर्न ओवरसीज में 12 ब्रांचेस में जो ट्रेनर्स हैं, प्लस westernoverseas.online, जहाँ पे स्टूडेंट्स कहीं से भी फ्रॉम देयर कंफर्ट ऑफ द होम घर बैठकर भी हमारी क्लासेस ले सकते हैं। वहां पर भी हम कैंडिडेट्स को अपने टिप्स, अपने स्ट्रैटेजीज देते हैं। क्लासेस के अंदर हमारा यही रहता है कि कैंडिडेट्स को ग्रामर, वोकैबुलरी, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं वो, बट ग्रामर जो बेसिक मटेरियल चाहिए कैंडिडेट को कि हाउ टू ड्राफ्ट अ सेंटेंस, जी, यही मेन प्रॉब्लम रहती है। तो स्कोरिंग पे काम किया जाता है कि आपका स्कोर किस तरह से अच्छा लाया जा सकता है इन अ बेस्ट पॉसिबल टाइम। बिकॉज यहाँ पर पीटी में एक टिप जो मैं अभी कैमरा पे देना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स को, कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपको सारे आंसर्स आते हैं बट टाइम चला जाता है, क्योंकि यहाँ गेम मिनट्स की नहीं है, यहाँ गेम सेकंड्स की है। ਚਲਿਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। तो ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੰਪੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ स्टूडेंट्स ਨੂੰ? सर कैंडिडेट्स को जो चाहिए दैट इज सेक्शनल्स। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन टाइप है, अब कैंडिडेट को चाहिए रीड अलाउड का क्वेश्चन टाइप, डिस्क्राइब इमेज चाहिए। सो हम लोग डिस्क्राइब इमेज में उसको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, बहुत सारे लीफलेट्स उसके पास अवेलेबल रहते हैं जिसको वो देखता है और जिसकी प्रैक्टिस करता है, बिकॉज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स, अब जैसे रीडिंग है, रीडिंग में जब फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, तो जो उसको हमने स्ट्रैटेजीज देनी है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैबिट है कि वी नीड अ पेन पेपर बेस्ड, जिसमें हम लोग उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। जब हमने उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, फॉर एग्जांपल मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में उनको कॉन्सेप्ट करवाया, कोलोकेशंस का, कॉनोटेशंस का। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस कहाँ होगी? कंप्यूटर पे। वो जरूरी है, बिकॉज कंप्यूटर से ही बच्चों को डर लगता है। और यही चीज के लिए हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, डू द प्रैक्टिस विद AI ओनली। तो AI के साथ प्रैक्टिस करना इज द बेस्ट। बाकी सोनाली मैम बताएंगे। सोनाली जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਡ ਆਫ ट्रेनिंग इन PTE इंडिया? 3-4 चीज़ों का ध्यान ज़रूर स्टूडेंट्स को रखना चाहिए। पहले तो बी फेमिलियर विद टेस्ट का जो फॉर्मेट है। PTE में 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 इज स्पीकिंग एंड राइटिंग, पार्ट 2 इज रीडिंग, पार्ट 3 इज लिसनिंग। तो फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कितना लंबा है। पार्ट 1 इज सपोज टू बी द लॉन्गेस्ट। फिर एक बारी फॉर्मेट का उनको फॉर्मेलियरिटी हो जाए, फिर उसके बाद उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो जो 20 क्वेश्चन टाइप्स जो पीटी में आते हैं उनमें उनको करना क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन टाइप इज द नेक्स्ट थिंग दैट दे नीड टू नो। एंड द थर्ड थिंग दे नीड टू नो इज कि स्कोरिंग कैसे होता है इसमें, ताकि उनको जब पता चले कि इसमें क्या चीज़ असेस हो रहा है, क्या चीज़ चेक हो रहा है। इन PTE लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रेट्स। तो ईच क्वेश्चन टाइप हैज़ डिफरेंट ट्रेट्स, असेसमेंट की चीज़ें चेक किए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन टाइप में क्या चेक हो रहा है और उसमें वो फोकस करें इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप ट्रेट्स पे फोकस करेंगे आपके डेफिनेटली स्कोर्स आएंगे PTE में। सो फॉर्मेट, question types and scoring are the first things that you should be
thorough with before you appear for the PTE test. इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और ऑल्सो गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू प्रिपेयर, क्योंकि अगर आपने इनफ टाइम नहीं दिया तो आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा. तो इट्स बेटर दैट यू गिव योर सेल्फ द टाइम टू प्रिपेयर एंड अपना ना इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल बनाइए. मतलब कि अगर आप क्लास में अटेंड कर रहे हो क्लासेस विद वेस्टर्न ओवरसीज, उसके बाद आप घर में जाके इंग्लिश में पढ़िए या लिसन करिए एंड डू थिंग्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग. दैट वे यू विल नॉट लूज इंटरेस्ट. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो माहौल बनाए. जितना प्रैक्टिस क्लास में कर ਰਹੇ हैं ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘਰ पे. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਨਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇਕਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਨਾਲੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PTE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ PTE ਤੋਂ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਟੋਫਲ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ PTE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, PTE ਓਵਰ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, PTE ਵੱਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? PTE, when it initially started, was a longer duration of test. जी. And then it changed to a 2-hour test. मतलब ड्यूरेशन 2 घंटे का हुआ था. फीडबैक मिला था कि स्टूडेंट्स को टेस्ट टेकर्स को बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था टेस्ट. तो दिस केम इन टू इफेक्ट अ कपल ऑफ ईयर्स अगो कि वो 2 घंटे का हो गया है. नाउ दैट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. इसके अलावा एनीथिंग एल्स? सुनील, सॉरी मैं भूल गई. तो मैं यही कह ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ PTE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਹੈ, PTE ਦੀ ਇਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ because it is a very test taker friendly test. It is easy. I'm not saying it's an easier test, but it is easy for students to do the test. जी. That is important. अब देखिए आपको 2 घंटे ही जाने हैं टेस्ट सेंटर में और बस 2 घंटे में वापस आए, और सब टेस्ट में आपको हो सकता है कि एक दो बारी और जाना हो, तो वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है. उस चक्कर में स्कोर्स भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. दूसरी बात है कि क्या बोलते हैं, आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बोल रहे हैं, तो वो अगेन स्टूडेंट्स फील मोर कंफर्टेबल talking to a computer screen, in front of a computer screen, because then they don't feel that they're being judged for their appearance. So these are some of the reasons why students find PTE a better test to do. ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ PTE ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏ? जाने से पहले बस यही कहूंगी कैंडिडेट्स, अगर आप स्टडी अब्रॉड या PR या कोई भी और ऑप्शन देख रहे हैं अब्रॉड जाने के लिए, PT इज गोइंग टू बी योर बेस्ट चॉइस विद द वेस्टर्न ओवरसीज, जहां पर आपको कोचिंग के साथ साथ डिस्काउंटेड एग्जाम बुकिंग वाउचर्स भी मिलते हैं और आपको रियलिटी टेस्ट भी मिलता है, जहां पर आप लोग पहले टेस्ट देने से पहले, फाइनल टेस्ट देने से पहले एक रियलिटी टेस्ट देके एक रिहर्सल कर सकते हो. इट्स लाइक ऑफ योर सेमीफाइनल मैच कि आपका स्कोर क्या है, जो आपको एक राइट पाथवे देगा कि आप फाइनल में कितना स्कोर लेने वाले हैं. तो कोचिंग भी वेस्टर्न ओवरसीज देता है, डिस्काउंटेड एग्जाम बुकिंग्स भी आपको वेस्टर्न ओवरसीज में मिल जाएगी, प्लस द रियलिटी टेस्ट एट वेस्टर्न ओवरसीज. लास्ट में मैं और सोनाली एक ही बात बोलना चाहेंगे, PT कर बेफिक्र विद वेस्टर्न ओवरसीज. ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ.